A very good morning to everyone. Today, let us talk about one of the most loved poet of America, Henry Wadsworth Longfellow. He was born on February 27, 1807. He was an American poet. He started his work as a teacher and he was a professor of English. Voices of the Night was his first collection of poems, published in 1839. It included The Psalm of Life. His other works were poems on slavery, The Spanish Student, Belfry of Bridges, The Golden Legend, Village Blacksmith. He is very good with positive ideas. Longfellow is one of the most celebrated, one of the most loved poet of America. The reason behind people loving his work is that he spoke a lot about optimism. He spoke a lot about positivity. In a stage when people are becoming so negative in terms about their life, their work, in terms of everything that happens around them, there is so much of negativity around us everywhere. In that case, everybody wants some positivity, some psalm of peace, some ray of hope, something that can take away from the world of negativity towards the world of positivity. So, today we are going to recite a beautiful poem, The Psalm of Life. It was written by H.W. Longfellow, and as the name suggests, the word psalm means a hymn, a devotional song, a song to commemorate God or Lord. It is the way in which we should be doing good things in our life. Here is a brief about the poem. The Psalm of Life is an inspiring poem. It is a very inspiring poem. It was first published in October 1838. Here the poet sees life from an optimistic outlook. To him, this life is full of possibilities. We can achieve higher goals by making full use of our time and by working hard. This poem also teaches us basic human values and it lays down the foundation for prosperous and ethical life. So, to begin with the poem, the first stanza of the poem reads as, "Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers and the things are not what they seem." Don't tell me sadly, don't tell me negatively, don't tell me sadfully. मुझे दुखद गीतों द्वारा, मुझे दुख के साथ यह मत बताओ that life is nothing than an empty dream, कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, निरर्थक है, खाली है, वेस्ट है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी मत बताओ। यह निरर्थक नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट वर्थलेस, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, इट इज़ नॉट समथिंग दैट डोंट नीड सेलिब्रेशन। यह ऐसा कुछ नहीं है, यह खाली नहीं है। इट इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, लाइफ इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। ही सेज, for the soul is dead that slumbers and the things are not what they seem. Slumbers means नींद में जाना, नींद आना, सोना। आदमी मरता है but soul never dies. आत्मा नहीं मरती. It merely goes into sleep for a short while. बस आत्मा थोड़ी देर के लिए सोने चली जाती है. And things are not what they seem. जैसा हम देखते हैं चीज़ें वैसी नहीं होती. हो सकता है हम अभी परेशान हों, हमारी लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है, हमारी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, हमारी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, हम एजुकेशन के फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ओवरऑल वी आर नॉट हैप्पी, बट द वे वी सी थिंग्स आर डिफरेंट, बट थिंग्स आर एक्चुअली डिफरेंट, थिंग्स आर बियॉन्ड डैट। जैसा हम देख रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, चीज़ें वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ लॉन्गफेलो कहना चाह रहे हैं डेट आफ्टर एवरी नेगेटिविटी कम्स पॉजिटिविटी। हर नेगेटिविटी के बाद, हर नेगेटिव कुछ अगर नेगेटिव हुआ है हमारे साथ तो उसके बाद पॉजिटिव आता है। आफ्टर एवरी नेगेटिविटी देयर कम्स अ पॉजिटिविटी। सो हमें लाइफ को एक एम्प्टी ड्रीम नहीं बनाना है, हमें लाइफ को खाली
नहीं सोचना है, निरर्थक नहीं बनाना है। सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम इज लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लाइफ इज़ रियल, लाइफ रियल है, अर्नेस्ट है, एक वास्तविक चीज़ है लाइफ, रियल है लाइफ। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, you are dust and you have to return to dust, as the Bible says. It is not spoken of the soul. Life is real. जिंदगी का लक्ष्य ग्रेव नहीं है, कब्र में जाना नहीं है। Death is not the end of life. मरना जिंदगी का एंड नहीं है। Dust thou art to dust returnest is not spoken of the soul. हम मिट्टी के बने हैं और अंत में हमें मिट्टी में ही मिल जाना है, पर ये बात सोल, आत्मा के लिए लागू नहीं होती। लाइफ, यहाँ पोएट ने बताया है, लाइफ रियल है, अर्नेस्ट है, एक वास्तविक है लाइफ, इसको हमें जीना है। हमारी लाइफ का गोल केवल कब्र में जाकर ख़त्म नहीं होता, केवल कब्र में जाना हमारी लाइफ का गोल नहीं है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर रहती है। हमारा शरीर मिट्टी का बना है और हम वह मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मिट्टी में नहीं मिलती है, आत्मा अमर रहती है। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। मिट्टी में मिलना आत्मा पर लागू नहीं होता है। सेकेंड स्टेंजा इज़ नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट डेट ईज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way. ज़िंदगी में हमारा लक्ष्य न सिर्फ ज़िंदगी को एंजॉय करना होना चाहिए और ना ही सिर्फ रोना होना चाहिए। हम बहुत रिच हैं और हम सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। Our life is meant to be enjoyed. खूब एंजॉय करो, खूब एंजॉय हम कर रहे हैं, हम रिच हैं, हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है वो रोता रहे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये दोनों ही गलत कर रहे हैं, दोनों ही लोग गलत कर रहे हैं। ना ही एंजॉय करना ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए और ना ही दुख मनाना। जो मेरे पास नहीं है उसको लेकर हम रोते रहें, यह भी हम गलत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हमें करना है। बट टू एक्ट डेट ईज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। तो हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है एक्ट, एक्शन, काम करना, वर्क, बी प्रोग्रेसिव, बढ़ते रहो, निरंतर लगातार कार्य करते रहो, बढ़ते रहो। और काम भी किस तरह करना? काम भी किस तरह करना पोएट ने बताया है, डेट ईज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। हम आज काम करें तो कल जब हम पलट कर देखें और कल काम करें तो देखें कि हम आज से कितना आगे निकल गए हैं। कहने का मतलब है हमको प्रोग्रेसिव होना है, प्रगतिशील होना है। जब हम ये सोच लेते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ हम अपनी प्रोग्रेस को हैम्पर कर रहे हैं, प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं। और जहाँ हम ये सोच लेते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हम सिर्फ रोते रहते हैं कि कुछ नहीं है मेरे पास, हम क्या करेंगे, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं फेलियर हूँ। तो ऐसी कंडीशन में हम फेलियर बन जाते हैं। द वे वी थिंक द वे वी बिकम, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो यहाँ एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो कहते हैं ना खुशी मनाना और ना दुख मनाना, दोनों ही हमारे टारगेट नहीं होने चाहिए। हमारा टारगेट वर्क करना होना चाहिए, एक्शन, एक्ट, काम करते चलो और काम करते चलो। और काम इस तरह से करो कि आगे से जब पीछे मुड़कर देखो कि हम पीछे से कितना आगे निकल आए।
हमने कितना अचीव कर लिया, हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली, हमने कितना पा लिया। तो यहाँ पोइट ने हमें कार्य करने की सलाह दी है, काम करने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा हमारी पोएम का है, आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग एंड अवर हर्ट्स दो स्टॉट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग funeral marches to the grave. Art is long and time is fleeting. यहाँ आर्ट का मतलब है न्यूमरस थिंग्स इन द वर्ल्ड, जिसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, नॉलेज, टैलेंट्स या कोई भी आर्ट, कोई भी कला जो आप सीखना चाहते हैं, जो हमें सीखनी है, कोई भी ज्ञान, जितना भी हमको लाइफ में सीखना है वो बहुत सारा है। इसको हमें मिस नहीं करना है क्योंकि ये बहुत सारा है। यू कैन लर्न न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग्स एवरी डे, यू कैन रिलिव, यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर ईच डे। हम हर दिन दोबारा जी सकते हैं, हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं, कुछ नया करके, कुछ अलग सा हासिल करके। तो इसमें पोइट वही कह रहे हैं, आर्ट इज़ लॉन्ग, सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बट टाइम इज़ फ्लीटिंग, डैट मीन्स टाइम इज़ रनिंग, टाइम इज़ रनिंग अवे, समय भाग रहा है, वह कम है। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता, वह निरंतर चलता रहता है। तो हमें समय को वेस्ट नहीं करना है। एंड अवर हर्ट्स दो स्टॉट एंड ब्रेव, यहाँ हमारे हर्ट को कंपेयर किया है। हम जब बहुत यंग होते हैं तो हमारा हर्ट बहुत ज़ोर से धड़कता है, मीन्स वी आर अलाइव, वी आर यंग, सो वी आर फुल ऑफ एनर्जी। हमारे अंदर बहुत एनर्जी है उस टाइम पे जब हम यंग हैं। हमारा हार्ट बहुत ब्रेव होता है क्योंकि वो यंग होता है। मगर जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, जैसे ही हम डेथ के करीब जाते हैं, हमारी हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो जाती है। एंड एट द एंड, जब हम अपने एंड में पहुंचते हैं, मीन्स जब हमारी लाइफ का आखिरी पड़ाव आता है, जब हमारी लाइफ का एंड होता है, तो हमारी हार्ट बीट भी रुक जाती है। आवर हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। सो हमारा हार्ट यंग एज में बहुत ज़्यादा धड़कता है, लेकिन जैसे ही डेथ की तरफ हम बढ़ते हैं वैसे ही इट बीट्स स्लोली एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टॉप्स। स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग funeral marches to the grave. यहाँ मफल्ड ड्रम्स का मतलब है क्लोथ ड्रम्स। क्रिश्चियंस में आपने देखा होगा, जब क्रिश्चियंस में किसी की डेथ होती है तो जहाँ से डेड बॉडी को लेकर जाते हैं तो वहाँ से ड्रम बीट उनकी स्टार्ट होती है। ड्रम बजाना, क्लोथ ड्रम होता है, उसकी बीटिंग स्टार्ट होती है और वहाँ तक इसको बजा कर ले जाते हैं जब तक उस व्यक्ति को कब्र में नहीं दफना दिया जाता है, नहीं गाड़ दिया जाता है। तो जैसे जब बॉडी को जिस घर से लेकर जा रहे हैं वहाँ बीटिंग बहुत हाई होती है, तो जैसे ही कब्र के पास जब दफनाया जाता है तो वहाँ बीटिंग जो है रुक जाती है ड्रम की। तो यहाँ सेम वे में जो है इसको हमारी हार्ट बीट से, हमारी लाइफ से कंपेयर किया गया है। जैसे है स्लो, हमारी जो ड्रम बीट है, जिस प्रकार से वहाँ ड्रम बीट स्लो हो रही है, फाइनली ग्रेव में आकर ड्रम बीट ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टेंजा में हमारे हार्ट को मफल ड्रम से कंपेयर किया है। जैसे ही हम डेथ के क्लोज जाते हैं हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। और इस स्टेंजा में एक पीस ऑफ एडवाइस दी है पोइट ने। वह कहा है उन्होंने कि हमारे पास लिमिटेड टाइम स्पैन है, टाइम इज़ फ्लीटिंग, हमारे पास लिमिटेड टाइम स्पैन है, तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। हार्ट बीट बंद होने से पहले हमें जितना सीखना है, जितना हमें अपनी आर्ट को निखारना है, हमने अपने हुनर को निखारना है, उतना हमें सीख लेना चाहिए। ग्रेव में जाने से पहले हमें जितना सीखना है उतना हमें सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा इज, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बायवर्क ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ फील्ड ऑफ बैटल। ये ज़िंदगी एक युद्ध क्षेत्र की तरह है जो आपको
लड़नी है, जिससे आपको लड़ना है, दुश्मनों से भरी है, बुराइयों से, अपनी प्रॉब्लम से आपको लड़ना है। हमारे अंदर भी ढेरों बुराइयां हैं, हमको उनसे भी फाइट करना है, हर चीज़ से फाइट करके आगे बढ़ना है। दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ फील्ड ऑफ बैटल। ये वर्ल्ड एक बैटल का फील्ड है। एंड वी आर लाइक सोल्जर्स, और हम जवान हैं, सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं। जैसे सैनिकों का कैंप होता है, वैसे ही ये दुनिया हमारे लिए एक कैंप है। एंड वी आर लाइक सोल्जर्स। हम सब सैनिक हैं, और इस युद्ध क्षेत्र में बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। आपको अपने आप को कैटल की तरह नहीं बनाना है। आपने सबने कैटल देखी हैं, वो उनको जिधर भगाओ वो उधर ही जाती हैं। हमको ऐसा नहीं बनना है। किस तरह? डम ड्रिवन कैटल। डम मीन्स गूंगी, ड्रिवन कैटल गूंगे जानवर, जिनको जिस दिशा में हाँक दिया जाए वही उनको जाना होता है। और अगर अपनी लाइफ का कंट्रोल छोड़ देंगे तो हम भी डम ड्रिवन कैटल हो जाएंगे, जिनको फेट यानी भाग्य दौड़ाएगा। जब हम एक्ट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हमारा भाग्य हमें जिस दिशा में दौड़ाएगा हमको दौड़ना पड़ेगा। Here poet tells us that mere passive followers of fate, भाग्य जिस दिशा में ले जा रहा है, mere passive follower of fate, भाग्य जिस दिशा में ले जा रहा है, निष्क्रिय होकर उसी दिशा में चले जा रहे हैं। ऐसा हमको नहीं करना है, नहीं बनना है हमको ऐसा। टेक होल्ड ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को पकड़ो, कंट्रोल करो। एंड बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, सोल्जर बनो, लीड करो अपनी लाइफ। पोइट ने आपको बताया न सिर्फ खुशी मनाना और न सिर्फ दुख मनाना हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक युद्ध क्षेत्र है और हम सोल्जर्स सैनिक की तरह हैं। एंड सोल्जर्स कैटल जैसे नहीं होते कि कैटल को जिस दिशा में टेंड कर दिया उसी डायरेक्शन में चल दिए। ऐसा नहीं बनना है, हमको सोल्जर की तरह से लड़ना है। ज़िंदगी के हर ऑड सर्कमस्टेंसेस, हर कठिन समस्या से लड़ना है, उन्हें फेस करना, उनसे भागना नहीं है। देखो, रुको और सामना करो। किससे? अपने दुश्मनों से, अपने अंदर की बुराई से, अपने अपोनेंट से। आप खड़े होकर देखोगे उसे तो आपका अपोनेंट खुद आपसे पीछे हो जाएगा और रास्ता आपको नज़र आने लगेगा। जब तक हम प्रॉब्लम्स को देखते रहेंगे, प्रॉब्लम्स बड़ी होती जाएगी, हम उससे डरते रहेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। जैसे ही हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखेंगे तो प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। एंड दिस एक्चुअली हैपन्स इन योर लाइफ, दिस एक्चुअली हैपन्स। नाउ नेक्स्ट stanza is, trust no future however pleasant, let the dead past bury its dead, act in the living present, heart within and God overhead. Trust no future however pleasant, आपको फ्यूचर कितना भी सुनहरा दिख रहा हो, बहुत पैसे हैं, मुझे कोई कमी नहीं है, देखना मेरा भविष्य बहुत ब्राइट होगा, बट फ्यूचर इज़ येट टू कम, भविष्य अभी आया नहीं है, वह आना बाकी है। कल क्या होगा ये हमें नहीं मालूम है। तो आज से आप जितना सुनहरा भविष्य देख रहे हो, अभी से उसका भरोसा मत करो। कब आपके सामने विपरीत परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, यू विल नेवर नोज। हमें नहीं पता कब हमारे सामने विपरीत परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, हमें नहीं पता फ्यूचर में हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ट्रस्ट नो फ्यूचर, भविष्य के बारे में विश्वास मत करो, उसके बारे में
मत सोचो, बिल्कुल विश्वास मत करो, चाहे वो कितना भी अच्छा हमें क्यों ना दिखाई दे। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। अब फ्यूचर की बात हो गई। फ्यूचर को मत देखो, चाहे वो कितना भी अच्छा दिखाई दे रहा हो। और जो पास्ट है, जो बीत चुका है, वो तो ऑलरेडी डेड है। हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, वो मर चुका, ख़त्म हो चुका है, वो पास्ट था। उस पर रोने से, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। भविष्य मत देखिए, यहाँ से भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है, पर कल क्या होगा किसी को नहीं पता। कौन सी परिस्थिति आएगी नहीं पता। और पास्ट वो तो मर चुका है, तो उस पे भी अपना समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। आपके हाथ में सिर्फ क्या है, वर्तमान है। अब अभी और इस प्रेजेंट को आप भूतकाल में मत बदलने दीजिए। इसमें आप काम कीजिए, लगातार काम कीजिए। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। और कैसे काम कीजिए? हर्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड। अपने अंदर हर्ट विद इन, अपने अंदर साहस रखो। बी एनकरेज्ड। और ऊपर वाले ईश्वर पर सिर्फ विश्वास रखो। उस ईश्वर पर विश्वास करो। बाकी किसी की भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया ख़त्म हो गया, जो आगे है वो फ्यूचर है, उस पर कोई भरोसा नहीं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट है उसको हम अच्छा बना सकते हैं। किस प्रकार से? कार्य करके, एक्ट करके, एक्शन लेकर। तो जस्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। भरोसा आपको किसका करना है? सिर्फ ऊपर वाले का। और अपने अंदर क्या रखना है? करेज, यानी साहस। अपने अंदर साहस रखना है, करेज रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है और सिर्फ कार्य करते जाना है। नेक्स्ट पैरा है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम and departing leave behind us footprints on the sands of time. Lives of great men all remind us. जितने महापुरुष हुए हैं उनकी ज़िंदगी हमें याद दिलाती है, रिमाइंड कराती है। We can make our life sublime, कि हम अपने जीवन को sublime means noble and high बना सकते हैं। हम अपने जीवन को सबलाइन बना सकते हैं, एक नॉवल बना सकते हैं। कोई भी महापुरुष बहुत ही समृद्ध, बहुत ही प्रॉस्पेरस पैदा नहीं हुआ। वह जब पैदा हुआ था तब वह समृद्ध या प्रॉस्पेरस नहीं था। हर महापुरुष ने पहले स्ट्रगल किए, बहुत सारी तकलीफ झेली, उसके बाद ही उसको कुछ हासिल हुआ है। तो उनकी ज़िंदगी को देखिए, तो आपको, जब आप उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी को सबलाइम बना सकते हैं, नोबल बना सकते हैं, एक आदर्श बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस। और जब यहाँ से विदा हो जाएंगे, जब इस संसार को छोड़ेंगे, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। जैसा आज आप महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं, उनकी फुटप्रिंट्स के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके नक्श कदम, उनके कार्यों को, उनके पैरों के निशान उनके एक्शंस के रूप में हैं। जो महापुरुष ने अपने निशान छोड़े हैं वो एक्शंस के रूप में हैं, उनको आप देखते हैं, उनके कार्यों के रूप में हैं। उसी प्रकार से आपको भी अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर जाना है। जब आपको यहाँ से विदा होना है तो आपको भी अपने फुटप्रिंट्स, अपने कार्यों के निशान छोड़कर जाना है। तो कुछ ऐसा करें कि लोग आपको याद रखें। नेक्स्ट पैरा है, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सो remain, a forlorn and shipwrecked brother
seeing shall take heart again. Footprints that perhaps another. जिस प्रकार से महापुरुषों ने आपको दिशा दिखाई है, उन्होंने जो दिशा आपको दिखाई है अपने फुटप्रिंट से दिखाने के लिए, जो अपने कार्य के फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, ग्रेट एक्शंस जो उन्होंने किए, वो निशान देख के आप उनके एग्जाम्पल्स फॉलो करते हैं। उसी तरह से आप अपने एक्शंस को छोड़ें, आप अपने कार्यों को रखिए और पैरों के निशान छोड़िए ऑन चेंजिंग सैंड्स ऑफ टाइम। जिस तरह क्या रेगिस्तान की रेत होती है, आपने रेगिस्तान की रेत देखी है, वो एक जैसी होती है, जैसे ही आंधी आती है रेत का नक्शा बदल जाता है, वैसे ही समय बदलता है। आपके कार्य रहने चाहिए, उनका उदाहरण रहना चाहिए, उनका एग्जाम्पल रहना चाहिए। और कैसा एग्जाम्पल रहना चाहिए? सेलिंग ओवर लाइफ सोलन मेन। ज़िंदगी एक सोलन मेन है, गहरा समुद्र है। उस गहरे समुद्र में तैरता हुआ एक आदमी, अ फॉर्लन एंड शिपरेक्ट ब्रदर, अ फॉर्लन लोनली, एक अकेला आदमी जिसका जहाज़ डूब चुका है। मतलब जो ज़िंदगी की लड़ाई में खुद को अकेला पा रहा है और बहुत विपरीत परिस्थितियों को, बहुत ऑड सर्कमस्टेंसेस को फेस कर रहा है। सीइंग शैल टेक हर्ट अगेन। आपके पैरों के निशान देखकर उसको ताकत आ जाए, आपके पैरों के निशान देखकर उसको ताकत आ जाए। ही शुड बी करेज्ड, उसको साहस आ जाए कि ये ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं अपनी ज़िंदगी के समुद्र को तैरकर पार क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसे कदमों के निशान छोड़कर जाइए, ऐसे कार्यों का उदाहरण छोड़कर जाइए, ऐसा आपको करके जाना है। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us doing, उठिए, तैयार हो जाइए, कार्य करना शुरू कीजिए। with a heart for any fate, कोई ज़रूरत नहीं कि आपका रिज़ल्ट, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कोई चिंता नहीं करनी है। अ हार्ट फॉर एनी फेट, सिर्फ काम करना हमारे हाथ में होता है, काम का रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो हम अपने आप को इतना साहसी क्यों ना बनाएं कि जब भी हमारा भाग्य हो, अच्छा हो बुरा हो, हम में इतनी ताकत है कि हम झेल जाएंगे। हमें भाग्य का नहीं पता कि हमारा भाग्य अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना साहस होना चाहिए, इतना करेज होना चाहिए कि हमारे सामने जो भी परिस्थिति आए हम उसको झेल जाएं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये ताकत हम में आनी चाहिए। जब ये ताकत हम में रहेगी तो ये ताकत हमारा एग्ज़ाम्पल देखने, हमारे उदाहरण देखने उस आदमी को मिलेगी जो अपने जीवन में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लगी रहिए लक्ष्य के पीछे, उपलब्धियां हासिल करते रहिए लगातार। एंड लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और सीखिए क्या, मेहनत करना और इंतज़ार करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने मेहनत की और तुरंत आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाए, तुरंत आपको उसका रिज़ल्ट हासिल हो जाए, उसका परिणाम मिल जाए। रिज़ल्ट कई बार बहुत देर से भी मिलता है, लेकिन ये सोच के कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या हम मेहनत करना छोड़ देंगे? क्या ये सही होगा कि हम मेहनत करना छोड़ दें? नहीं, मेहनत करना सीखिए एंड वेट करना सीखिए, इंतज़ार करना सीखिए।
आप इंतज़ार करेंगे तो आपको आपके कार्यों का फल निश्चित रूप से मिलेगा। यू विल गेट द रिज़ल्ट वॉट यू हैव डन। बस क्या करना है, पेशेंसली अपना कार्य करना है, काम का रिज़ल्ट का वेट करना है। उसके लिए घबराना नहीं है कि हमें हमारा रिज़ल्ट नहीं मिला तो अपना कार्य करना नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन है जो पोइट ने यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है इस पोएम में। द पोइट एक्सप्लेन्स दैट लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, इट इज़ रियल एंड कुड बी ग्रेट। लाइफ हैज़ अ मीनिंग, लाइफ हैज़ अ मीनिंग, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, इट कैन बी रियल एंड इट इज़ ग्रेट। ह्यूमन्स आर नॉट मेंट टू लिव एंड डाई, दे आर मेंट टू बी रिमेंबर्ड। ह्यूमन्स का जन्म इसलिए नहीं होता है कि जीवन लिया और मर गए, उनको दे आर मेंट टू बी रिमेंबर्ड। और रिमेंबर कैसे होना है, अपने कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ के जाने हैं जिससे हमें आगे आने वाली पीढ़ी हमें याद रखें। लाइफ कंटेन्स लॉट्स ऑफ स्ट्रगल बट वी मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ टेम्पररी एंड द गोल इज़ अ मच बेटर प्लेस। सो बी स्मार्ट व्हाइल यू आर हियर, स्टैंड आउट। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, हमें उनको फेस करना है। दो स्ट्रगल्स आर टेम्पररी, उनको फेस करना है, उनसे बाहर निकलना है। डोंट फॉलो द पाथ ब्लाइंडली लाइक कैटल, डोंट बी लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी लाइक अ सोल्जर। लिव अ लाइफ दैट विल बी रिमेंबर्ड एंड सो ग्रेट दैट व्हेन अदर्स हियर अबाउट यू, यू हैव सेट एन एग्जाम्पल। ऐसे उदाहरण छोड़कर जाइए कि लोग आपको याद रखें। लोग जब आपके बारे में सोचें तो उनको भी उनके अंदर भी साहस, करेज उत्पन्न हो। वर्क हार्ड एंड बी अ गुड पर्सन एंड बी पेशेंट एज लाइफ होल्ड समथिंग मच ग्रेटर। मेहनत करिए और अच्छे इंसान बनिए और बी पेशेंस रखिए अपने अंदर, क्योंकि लाइफ कुछ आपके लिए अच्छा लेकर आई है। थैंक यू फॉर पेशेंसली वॉचिंग माई वीडियो। If you have any doubts, then comment below. Thank you very much.